ولایت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر نہ دینا ہو تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو بھی نہیں دی جاتی، اور اگر دینا ہو تو غار میں سلا کر بھی ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کے اندر 12 صفتیں ہوتی ہیں، اگر ولی پہچاننا ہو تو آپ امامے کے پیچ و خم سے نہیں پہچان سکتے، ولایت کو پہچاننا ہو تو ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی سے بھی نہیں پہچان سکتے، بلکہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ولی کی 12 صفتیں بیان فرماتے ہیں، اور یاروں کی 2 صفات، اللہ اکبر، یہ 8 صفات ہو گئی، اور اس طریقے سے رسول اللہ کی 2 صفات 10 صفات ہو گئی، اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات 12 صفات۔ میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب اچھے لوگ، بڑے لوگ کھانا کھا چکتے ہیں تو وہ پلیٹ چاٹ کر صاف کر کے نہیں اٹھتے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے چھوٹوں کے لیے ٹکڑے چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں، تاکہ اس کو بعد میں وہ اپنے اس سے خوشہ چینی کر سکے۔ تو حضور قائد ملت کے بعد میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے کوئی بڑا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو چھوڑ دے تاکہ میرے بعد آنے والا اس سے خوشہ چینی کر سکے۔ میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہوگی۔ اس کو آپ کوئی نئی گفتگو نہ تصور کیجئے گا، بلکہ حضرت ہی کی گفتگو کا فیضان تصور کیجئے گا۔ حضرت نے جو بنیادیں فراہم فرمائی ہے حضور شیخ اعظم کے لیے، ان کی ولایت کے لیے، سب سے پہلے میں انہی کے سرکار شیخ اعظم کے جد امجد کے کچھ اقوال کے حوالے سے ولی کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ولی کی تعریف ولایت دینے والا جس شان سے بیان کر سکے گا شاید لینے والا بھی اس انداز سے بیان نہ کر سکے۔ حضور غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ولایت تقسیم کی ہے اور لوگوں کو ولی بنایا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ولایت جو ہے سرکار غوثیت مآب نے چوروں کو بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر چوروں میں بھی وہ مقام دیا۔ ایک تو یہ کہ اگر صرف ولایت کا مقام دیتے تو بھی بڑی بات تھی، لیکن ولایت میں وہ مقام جسے مقام قطبیت کہتے ہیں، سرکار غوثیت مآب نے چور کو مقام قطبیت عطا فرمایا ہے۔ ولایت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر نہ دینا ہو تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو بھی نہیں دی جاتی، اور اگر دینا ہو تو غار میں سلا کر بھی ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر عطا کرنا ہو، آپ اصحاب کہف کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھیں گے، صرف ان کی نیند کا تذکرہ پڑھیں گے، گویا کہ قدرت بتا رہی ہے اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر سلا کر بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر عبادت پر بھی عطا نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو راستہ اختیار کرنا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی کرم کی برسات ہو ہی جائے گی۔ لیکن میں جس گلے سرسبد کی بات کر رہا ہوں، خاندان غوثیت اور خاندان اشرف کی، جس کے گھر سے ولایت بڑھتی ہو، میں اس کی ولایت پر کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ اکبر، آج ہر ننگے دھڑنگے کو بھی ولی مانا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جھوٹی شہرتیں کر دی جاتی ہیں، الگ الگ معاملات کر دیے جاتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی 12 صفتیں ہوتی ہے، ولی کے اندر 12 صفتیں ہوتی ہے۔ اگر ولی پہچاننا ہو تو آپ امامے کے پیچ و خم سے نہیں پہچان سکتے، جبوں کی خوبصورتی سے نہیں پہچان سکتے، ولایت کو پہچاننا ہو تو ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی سے بھی نہیں پہچان سکتے، بلکہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ولی کی 12 صفتیں بیان فرماتے ہیں، اور ان 12 صفتوں میں ہم شیخ اعظم کی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ کیا یہ 12 صفتیں میں، یہ 12 صفتوں میں حضور شیخ اعظم کی زندگی کا کوئی گوشہ ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو پھر بات اپنی جگہ ہوگی، اور اللہ اکبر پھر گفتگو ہوگی۔ میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ سرکار
सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं, वली में दो सिफतें जो होती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो सिफात का मजहर होता है। वली अल्लाह की दो सिफात का मजहर होता है, रसूलुल्लाह की दो सिफात का मजहर होता है, सिद्दीक अकबर की दो सिफात का मजहर होता है, फारूक आजम की दो सिफात का मजहर होता है, उस्मान गनी की दो सिफात का मजहर होता है, मौला अली की दो सिफात का मजहर होता है। यानी चार यारों की दो दो सिफात, अल्लाह अकबर, ये 8 सिफात हो गई। और इस तरीके से रसूलुल्लाह की दो सिफात 10 सिफात हो गई। इसी तरीके से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो सिफात 12 सिफात हो गई। अब आइए शेख आजम का जायजा लेंगे, उनकी जिंदगी के अंदर ये सिफात है कि नहीं। कुदरत की वो दो सिफात का मजहर होता है। नंबर 1 सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी का वो मजहर होता है। वल्लाह तल्ला बिल्लाह, मुरीदों को देख करके गुफ्तगू का उन्वान बदलने को मैं निफाक समझता हूँ। खानदान सरकार कला की 4 पुश्तें मैंने अपनी छोटी सी उम्र में देखी है। मैंने हुजूर सरकार कला की भी ज़ियारत की है, हुजूर शेख आज़म की भी ज़ियारत की है, हुजूर महमूद मियाँ की भी ज़ियारत कर रहा हूँ, और उनके शहजादे हामिद मियाँ को भी हम उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। यानी इतनी मुख्तसर सी उम्र में अल्लाह ने हमें सरकार अशरफ के खानवादे की 4 पुश्तों को दिखाया, ज़ियारत कराया। लेकिन फिर कहता हूँ इंतहाई इंसाफ के साथ गुफ्तगू करूँगा। इसकी वजह यह है, ये मिंबर बड़ा जिम्मेदार मिंबर है। क्यों? अगर हम मखलूक की खुशी के लिए कुछ कह दें तो मखलूक तो खुश होकर चली जाएगी, मगर खालिक नाराज हो जाएगा। और मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज करना ये किसी तरह की दानिशमंदी नहीं है। अल्लाह अकबर, सिफत सत्तारी और सिफत गफ्फारी का वो मजहर होता है जो अल्लाह का वली होता है। सिफत सत्तारी क्या मतलब? जिसके ऐब देखें उसके ऐब को छुपा दें। आप देखें, माँ भी अगर ऐब देखे बेटे के तो वो कम से कम उसके बाप को जरूर बताती है, भाइयों को जरूर बताती है। मगर मेरा अल्लाह कितना सत्तार है। बंदे जराइम करता है, कुदरत पर्दे डालती है। बंदे जराइम करते हैं, कुदरत पर्दे डालती है। शान सत्तारी का आलम क्या है? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, अगर अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दे न डाले तो ना वहां आप बैठने के काबिल हो, ना यहाँ हम बैठने के काबिल हो। ये शान सत्तारी ही तो है। इंसान जराइम करता जाता है और उसके बाद कुदरत पर्दे डालती जाती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त तक पर्दे नहीं उठाए जाते जब तक कि इंसान गुनाह करने का आदी होकर उस पर दिलेर न हो जाए। मिसाल के तौर पर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स चोरी करते पकड़ा गया, और जब चोरी करते पकड़ा गया तो आपने फरमाया उसके हाथ काट दो। उसने हाथ जोड़ के कहा सरकार पहली मर्तबा करके पकड़ा गया हूं। आप फरमाते अल्लाह की कसम तूने पहली बार चोरी नहीं की बल्कि तू आदी हुआ उसके बाद ही पकड़ाया। उसने कहा मैंने पहली बार की। फरमाया मैं नहीं मानता, लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला वो पहली चोरी नहीं थी बल्कि वो चोरी का आदी हो गया था। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इतने यकीन से खुदा की कसम क्यों खाई जब आपको पता नहीं था? फरमाया वल्लाह मेरा रब इतना बड़ा सत्तार है कि पहली मर्तबा जुर्म पे किसी को पकड़ाता नहीं है जब तक इंसान जुर्म करने का आदी ना हो जाए और उस पर दिलेर ना हो जाए। अल्लाह अकबर। ये सिफत सत्तारी है। और अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है उसके अंदर इस सिफत सत्तारी का कुछ हिस्सा अता फरमाता है। यानी वो लोगों के ऐबों को कुरेदता नहीं है बल्कि ऐबों पे पर्दे डालता है। अब अगर मैं बात सच्ची कर रहा हूं तो शेख आजम को देखने वाले यकीनन मेरी बात की तस्दीक करेंगे। शेख आजम उस हस्ती का नाम है कि जिसकी महफिल के अंदर किसी के ऐब बतौर गीबत बयान नहीं होते थे, बल्कि जब भी वो गुफ्तगू करते थे या तो तसव्वुफ की गुफ्तगू करते थे, या तो बुजुर्गों की गुफ्तगू करते थे, या तो असलाफ की गुफ्तगू करते थे। इसलिए कि जब पीर गीबत करने वाला हो जाएगा तो मुरीदों को गीबत करने से कौन बचाएगा? जब पीर लोगों की ऐबजोई करने वाला हो जाएगा तो ऐबों पे पर्दे कौन डालेगा? वल्लाह लोग डॉक्टरों के पास इतना खुल करके अपने मामलात बयान नहीं करते जितना मशाइख के पास अपने मामलात बयान करते हैं। लेकिन अगर वही सबके मामलात को ओपन करता फिरे तो बताओ लोगों का हाल
हाल क्या होगा। तो जिसे कुदरत दोस्त बनाती है उसे सिफत सत्तारी से हिस्सा अता फरमाती है। अल्लाह अकबर। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। नंबर 2, उसे सिफत गफ्फारी से भी हिस्सा अता किया जाता है, यानी मुआफ करना। अल्लाह अकबर। मैं कोई वल्लाह मुर्दा जो गड़ चुका है उसको उठाना नहीं चाहता, लेकिन जो लोगों ने हुजूर सरकार कला के विसाल के बाद के हालात देखे हैं वो इस बात पर गवाह हैं किन हालात से शेख आजम गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। जो खुद कहता है कि गमों में रोते हुए मेरे आंसू मिसले नीर हो गए हैं। अल्लाह अकबर। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह की नीर से अपने आंसुओं को जो तशबीह देता है, मगर वल्लाह जिस वक्त सताने वालों ने माफी की तलब की है, हुजूर शेख आजम ने अपने नाना जान मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए आपने समीम कल्ब के साथ, खुले दिल के साथ लोगों को माफ करके बता दिया कि सिफत गफ्फारी से भी अल्लाह ने आपको हिस्सा नसीब फरमाया है और आपने माफ किया है। खुद हमारे शहर मालेगांव के अंदर मैं ऐसे मुजरिमों को जानता हूं जिन्होंने हुजूर शेख आजम के उन दिनों में बड़ा दिल दुखाया है, लेकिन जब माफी के लिए आए हैं तो माफ भी किया है, और सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि अता भी फरमाया है। तो गोया कि जिसको विलायत दी जाती है सिफते सत्तारी और गफ्फारी का, उसे मजहर बनाया जाता है। ये हाल है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए माफ करने का तरीका। एक मर्तबा मैं खुद हुजूर शेख आजम की महफिल में मौजूद था। मेरी उम्र उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी क़ुव्वत हाफ़ज़ा जहाँ तक मेरी रहनुमाई कर रही है, मैं बिल्कुल जो है अगर सही कह रहा हूँ अपनी क़ुव्वत हाफ़ज़ा की बुनियाद पर, तो एक बात आपको बताता हूँ उनकी सोच क्या थी। हुज़ूर शेख आज़म के साथ कुछ लोग बैठ करके हालात का रोना रो रहे थे, इसलिए कि कुछ लोगों की आदत है कि वो अपने बुज़ुर्गों के दरमियान हालात का ऐसा रोना रोते हैं स्टेज पर जाने से पहले, ताकि मिंबर पर जाने के बाद इंसान अपनी बोली बोलने की बजाय बोले हुए लोगों की बोली बोले। लेकिन एक जुमला आपको कह दूं, शेख आज़म की बारगाह में काम करने वालों की कद्र थी, कान भरने वालों की कद्र नहीं थी। हुजूर शेख आज़म अल्लाह के उस बरगज़ीदा बंदे का नाम है। अल्लाह अकबर। आप पर को जब शिकायत की गई तो आपने फरमाया कि आपका मखसूस अंदाज था, हाथ उठाते थे और वो खूबसूरत हाथ, नुकेली उंगलियां, और कभी कभी उन उंगलियों के पोरों के ऊपर पान के हल्के से निशानात, और चेहरा अल्लाह अकबर ऐसा खिला हुआ यूं लगता था जैसे किसी झील के अंदर अभी अभी कमल ने मुस्कुराया हो। इतना खूबसूरत सा चेहरा। और ये बात इंसान जो है बिल्कुल शरे सद्र के साथ कह सके कि लोग मौला अली के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थे। हमारे शहर में भी किसी ने बका था तो मैंने कहा था कम से कम उनकी नस्ल ही को देख लेते। जब 1400 साल के बाद हुस्न का ये आलम है तो अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात के हुस्न का आलम क्या होगा। अंदाजा फरमाए, बड़ा हसीन सा चेहरा, और पान खाने की वजह से वो लाल से होंठ सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के होंठों की याद ताज़ा करते हैं। मखदूम अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी ने जिस वक्त मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह की सिफात बयान की थी, उसमें से सही नसब हुसैनी सैयद के साथ ये भी कहा वो इतना खूबसूरत होगा कि उसके हुस्न की वजह उसके दाढ़ी के ऊपर भी जाहिर होगी और उसके होंठों से पान के असरात जाहिर होंगे। ये बात आपकी जिंदगी में है। हुजूर शेख आजम वो मखसूस अंदाज में जो है होंठों की लाली और फिर हाथों का वो अंदाज और फिर जबान में एक हल्की सी मखसूस सी लुकनत और वो गुफ्तगू के मजे को मजीद दुबाला कर देती थी और कान में रस घोलने लगती थी। उनके वालिदे बुजुर्गवार की आवाज की याद ताजा कर देती थी, अंदाज ताजा कर देती थी। तो आपने लोगों से फरमाया तुम मेरी तरह क्यों नहीं बन जाते? तो कहा हुजूर मतलब क्या? कहा जब लोग मुझे सताने लगते हैं तो मैं उनका जवाब देने की बजाय मैं अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी कर देता हूँ, किसी ना किसी काम में मसरूफ कर लेता हूँ ताकि मुझे लोगों को जवाब ना देना पड़े। और फिर फरमाया कि मैं तो दुश्मनों की तरफ तवज्जो नहीं करता। वो मखसूस लहजे में मैं नहीं बोल
सकूंगा। वो बड़ा खूबसूरत मेरे दिलो दिमाग पे वो जुमले अब भी नक्श है और हम उसको भी मिशाले राह बनाए हुए हैं। आपने फरमाया बड़ों की सोहबत में बैठने से यही होता है। याद रखना, किताबें इल्म बढ़ा सकती है, जिंदगियां नहीं बदल सकती। जिंदगियां तो सोहबतें बदला करती है। इसलिए जब भी कोई साहिबे दिल मिल जाए तो चंद लम्हे उसके कदमों में बैठने की कोशिश करो। किस लिए कि आरिफ रूमी ने कहा है, यक साहब सोहबते बाओलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। अल्लाह अल्लाह, किसी साहिबे दिल की सोहबत में बैठने से वो मिलता है जो महीनों सालों बरसों मेहनत करने से नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं तो राबिया बसरी की तरह हूं, दुश्मनों पे तवज्जो ही नहीं करता। तो लोगों ने पूछा हुजूर मतलब क्या? फरमाया जब राबिया बहुत इबादत करती थी तो किसी ने कहा राबिया माई जब तू इतनी इबादत करती है तो दुश्मन तो तुझे बहुत सताते हैं, तो शैतान तो तुझे बहुत सताता होगा, शैतान तो तुझे तकलीफ पहुंचाता होगा, शैतान तो तुझे हर जगह पर परेशान करने की कोशिश करता होगा। तो राबिया ने जवाब दिया, कहा कि मुझे यार की यारी से फुर्सत नहीं है, दुश्मन के लिए मैं वक्त कहां से लाऊं? हमारे पास तो दुश्मनों के लिए नारे तकबीर। फरमाते वाह वाह हुजूर वाह। शेख आजम फरमाते मुझे काम से फुर्सत नहीं है, मैं मुखालिफिन के लिए वक्त कहां से लाऊं? आप अंदाजा फरमाए ऐसा मुर्शिद अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया जिसे शेख आजम वाकई वो शेख आजम वाकई शेख आजम थे। दो सिफतें रसूलुल्लाह की, वो हुजूर की सिफात का मज़हर। हुजूर की दो सिफतें क्या? हुजूर उम्मत के लिए रफीक भी हैं और शफीक भी हैं। हुजूर गौसे पाक, रफीक का मतलब होता है दोस्त और शफीक का मतलब होता है शफकत करने वाला, प्यार करने वाला। मैं वल्लाही लजीम कह रहा हूँ, ज़्यादा कसमें खाना भी अच्छी बात नहीं, लेकिन उन्वान नाजुक है। किसी को भी टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता हूँ और गीबत जिना से बदतर है। लेकिन अगर दाएं बाएं अल्फाज के तीर चले जाएं तो अगर मैं शराब के खिलाफ तकरीर करूं और कोई कहे कि ये किसको बुला लिया था मालेगांव से कि वो हमारे खिलाफ बोल रहा था, मेरे अजीज मुझे तो पता भी नहीं कि आप शराब पीते हैं, मुझे पता भी नहीं कि आप जुआ खेलते हैं। अगर तीर आप तक पहुंचे तो मैं क्या कर सकता हूं? तो बड़ी माजरत के साथ फिर कह रहा हूं, आप ध्यान में मत लाइएगा। टारगेट करके तकरीर करने को गीबत समझते हैं हम, और गीबत जिना से बदतर है। ये मिंबर इतना मुकद्दस इसलिए नहीं है कि आके किसी की गीबत कर जाए, और ये भी आपको कह दूं कोई इतना कीमती भी नहीं है कि हम उसकी गीबत करें। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की करता। तवज्जो है आपकी? अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की करता। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब कोई किसी की गीबत करता है तो अपनी नेकियां उसके नामे अमाल में ट्रांसफर करता है और उसके गुनाह अपने नामे अमाल में लेता है। तो भाई अगर ये काम ही करना, अपनी नेकियां किसी को ट्रांसफर ही करना है, तो मैं अपने माँ बाप को क्यों ना दूं? लेकिन चूंकि गीबत हराम है, माँ बाप की भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करते। तो तवज्जो फरमाएं, रफीक और शफीक होता है वो मुर्शिद वली अपनी कौम पर, इस तरह जैसे अल्लाह के रसूल रफीक और शफीक थे उम्मत के लिए। मतलब क्या? हुजूर की रिफाकत का अंदाज क्या था? अगर मदीने मुनव्वरा के नन्हे नन्हे बच्चे हुजूर का हाथ पकड़ के कहते या रसूल अल्लाह हमारे घर चलिए और खाना खा लीजिए, अगर अल्लाह के रसूल को भूख लगी होती तो अल्लाह के रसूल ये नहीं देखते कि किसी का झोपड़ा है या किसी का महल है। हुजूर को जिसने बुलाया, रिफाकत का आलम ये था, रिफाकत का आलम ये था, जिसने आवाज दी हुजूर पहुंच गए। अल्लाह अकबर, किस तरह पहुंचे? इंसान तो इंसान जानवरों की फरियाद पर भी पहुंच गए, अकलमंद तो अकलमंद पागलों की फरियाद पर भी पहुंच गए। जिसने चिड़ियों की फरियाद सुनी, जिसने पागल ऊंटों की फरियाद सुनी, जिसने अल्लाह अकबर पागल इंसानों की फरियाद सुनी, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अंदाज ये था। रफीक होता है वो अपनी कौम पर जैसे हुजूर उम्मत पर रफीक थे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हमने अमीरी और गरीबी में जनाजे भी बांट दिए, अमीरी गरीबी में जनाजे भी बांट दिए, शादियां भी अमीरी गरीबी में बांट दी। बड़ी माजरत के साथ अगर कलकत्ता का कोई मुरीद बीमार है और मालदार है तो हजारों किलोमीटर से सफर जो है वो फोन चला जाएगा, हाजी साहब आप खैरियत से तो हैं। लेकिन अगर गली का मुरीद मर गया है तो उसके जनाजे में शिरकत के लिए वक्त नहीं है।
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امیری اور غریبی میں جنازوں کو، شادیوں کو تقسیم کر دیا ہے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ حال نہیں تھا. حضور کی شان یہ تھی، اگر پتا چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، حضور اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو پتا چلتا ہے کوئی یہودی بیمار ہے، اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اگر کوئی غریب ہے، حضور اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں. کوئی امیر ہے، اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں. یہ رفاقت کا انداز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور شیخ اعظم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. جب تک کہ پیر کام کرتے تھے، جب تک پیر کام کرتے تھے، آپ کا 10 دن کا قیام ہے، 5 دن کا قیام ہے، تو جس نے کہا حضور میرے گھر دعا کے لیے چلیے، زبان پہ نہ نہیں ہوتا تھا بلکہ برابر تشریف لے جاتے تھے. اس لیے کہ امیری غریبی وہ دیکھتا ہے میرے عزیز جس کی نظر پیسوں پہ ہوتی ہے، اور جس کی نظر یار کی رضا پر ہوتی ہے، اس کے لیے امیر اور غریب تو یکساں ہوتے ہیں. ابھی آپ نے سنا حضرت سے کہ جس کی کوئی پراپرٹی نہیں، جس کا کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں بڑھ چڑھ کر کے، اور اب بچوں کو آبائی مکان صرف وراثت میں ملتا ہے. شیخ اعظم اس بادشاہ کے عظیم سپوت تھے جس نے ٹھکرایا تھا تخت و تاج کو خدا کی محبت میں. وہ اپنے بابا کے راستے سے کیسے ہٹ سکتے تھے، کیسے بغاوت کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا نام کسی مسجد کے مولوی صاحب نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، کسی جلسے کے ناظم نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، بلکہ کسی علم ظاہر کے، علم العادات کے ماہر نے بھی ان کا نام اظہار اشرف نہیں رکھا تھا. جسے ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، عارف باللہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ولی ابن ولی کہا جاتا ہے، انہوں نے نام رکھا تھا. اور اظہار اشرف کا مطلب کیا بیان کیا تھا؟ فرمایا یہ اظہار اشرف ہے، یعنی اس سے اشرف کا اظہار ہوگا. واہ 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 واہ. جنہوں نے اشرف کو نہیں دیکھا وہ اظہار کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ اظہار اشرف یہ ہے، اشرف کا اظہار یہ ہے. واہ واہ واہ. تو وہ اظہار اشرف ہوگا، یعنی کہ اشرف جس کی شخصیت میں آشکار ہوگا. اظہار سے جس اشرف کو ظاہر کیا جائے گا، ان کے کردار کو، ان کی سخاوت کو، ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کے اخلاق کو، وہ اظہار اشرف ہوں گے. اندازہ فرمائیں تو یہ نام یوں ہی نہیں رکھا گیا، ایک عارف باللہ کی زبان سے نکلا تھا وہ نام، اور پھر انہوں نے واقعی اپنی ذات سے کردار اشرف کا اظہار کر کے بتایا، اور دنیا کو کہنا پڑا جب اظہار اشرف یہ ہے تو شان اشرف کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شیخ اعظم کانفرنس